Hello, this is Educational Wisdom YouTube channel and you are welcome to this exciting lesson on present continuous tense. In this video, we will explore what the present continuous tense is, how to form it and when to use it in different contexts. So, let's jump right in. We will start our lesson with the definition of present continuous tense. So, let us see what is present continuous tense. The definition is here. The present continuous tense is a verb tense used to describe actions that are happening at the moment of speaking or temporary actions that are in progress. It is also used to talk about future arrangements. So we use present continuous tense in three situations. What are those situations? It is used to describe actions that are happening at the moment of speaking. जब हम बात कर रहे हैं उस वक्त जो एक्शन हो रही है, जो काम हो रहा है, उसको बताने के लिए we use present continuous tense. Second, it is also used for temporary actions that are in progress. Temporary actions जो अभी चल रहे हो. Temporary actions जो अभी चल रहे हो का मतलब क्या? जो ऐसे actions हैं जो हमेशा नहीं हो रहे हैं, जैसा कि हमने प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस के वीडियो में देखा था. उसमें जो है ना ऐसे सेंटेंस हम यूज किए. प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस इसके लिए यूज हुआ था फैक्ट्स बताने के लिए, हैबिट्स बताने के लिए. तो यहां पे हैबिट्स नहीं बल्कि टेम्पररी एक्शंस हैं जो अभी चल रहे हैं, हमेशा चलेंगे ऐसा नहीं है, तो उनके लिए भी ये यूज होगा. अगर आपको ये बात अच्छे से समझना है, वीडियो आगे तक देखते रहिए, क्लियरली मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगा. एंड इट इज ऑल्सो यूज टू टॉक अबाउट फ्यूचर अरेंजमेंट्स. फ्यूचर अरेंजमेंट्स के बारे में भी बात करना, यू कैन यूज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. अभी आपको ये अजीब लगेगा कि फ्यूचर में किस तरह से प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यूज होता है, तो ये भी यूज होता है. जब हम एग्जांपल्स देखेंगे तो आप अच्छे से इसको समझ पाएंगे. आगे बढ़ते हैं. हाउ टू फॉर्म प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, कैसे बनाना है द सेंटेंस ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. टू फॉर्म इट वी यूज ऑक्सिलरी वर्ब ऑफ टू बी. ऑक्सिलरी वर्ब मींस हेल्पिंग वर्ब्स of to be. be के helping verbs कितने हैं? there are 5 helping verbs of be. am, is, are. These are present continuous tense. Present tense of the be helping verbs. was and were are past tenses. So we have to use auxiliary verb of to be, that is am, is or are in the present tense. It is written here. Plus present participle form of the main verb. What is present participle form? It is ing form. For example, go is a main verb. Ing form of go is going. So we have to use am, is, are plus ing form of a main verb. Okay? To make the present continuous tense sentences. Let's see it in detail. The auxiliary verb to be in the present tense is am, is, are. For example, I am using am plus the present participle form of the main verb. Main verb, for example, is study, action word. Present participle form is ing form, studying. Am studying. What we should add to complete this sentence? We should add subject and object. Who is studying? I am studying. What I am studying for, or for what I am studying? I am studying maths. So this is present continuous tense sentence. I am studying maths. Other example of is: subject she is. What is is? It is to be auxiliary verb, helping verb of the be form. She is. Now main verb with ing form. She is cooking. What? Dinner. This is the complete sentence. So it is in present continuous tense. Let us see another example. Subject is they. Be form of the helping verb will be are. ये तो आपको पता ही होगा. is यूज होता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, आर यूज होता है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ,
एम यूज होता है आई के साथ, तो ये तो बेसिक चीजें हैं। दे आर, मेन वर्ब प्ले, आईएनजी फॉर्म ऑफ इट प्लेइंग, दे आर प्लेइंग फुटबॉल। तो दिस इज द सेंटेंस ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इस तरह से प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंसेस बनाए जाते हैं। नेक्स्ट थिंग जो हम देखने वाले हैं, सम मोर एग्जांपल्स ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। आई एम वॉचिंग अ मैच राइट नाउ। लुक हियर, एम इज द बी हेल्पिंग वर्ब, वॉचिंग वर्ब प्लस आईएनजी। अब इसमें देखिए बात कौन सी निकल के आ रही है, आई एम वॉचिंग अ मैच राइट नाउ। अभी मैं क्या कर रहा हूं वो बताने के लिए हम इसका यूज कर रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। मैंने पहले आपको डेफिनेशन में बता दिया था, यहां पे आप देख सकते हैं। इट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब एक्शंस, इट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब एक्शंस दैट आर हैपनिंग एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग। जब हम बात कर रहे हैं उस वक्त जो एक्शन हो रही है वो बताने के लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज होता है। अभी जब मैं बात कर रहा हूं तो मैं क्या कर रहा हूं ये अगर मुझे बताना है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस यूज करूंगा इस तरह से, आई एम वॉचिंग अ मैच राइट नाउ। उसी तरह से ये देखिए, एट द मोमेंट मैं क्या कर रहा हूं, फॉर एग्जाम्पल, या वो क्या कर रहा है, ही इज रीडिंग अ बुक। अभी वो क्या कर रहा है ये बताने के लिए, एक्शन अभी भी कंटिन्यू है ये बताने के लिए कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। उसमें ये बी का हेल्पिंग वर्ब और आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब आर वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट एग्जांपल, दे आर वर्किंग ऑन ए न्यू प्रोजेक्ट, दे आर वर्किंग ऑन ए न्यू प्रोजेक्ट। ये देखिए एग्जांपल किस चीज के हमने डेफिनेशन में जो देखा था, टेम्पररी एक्शंस दैट आर इन प्रोग्रेस, टेम्पररी एक्शंस दैट आर इन प्रोग्रेस, दे आर वर्किंग ऑन ए न्यू प्रोजेक्ट। न्यू प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, ये हमेशा के लिए करेंगे नो, बल्कि टेम्पररी एक्शन है उनकी, ओके, और हैपनिंग नाउ अभी कर रहे हैं। तो ऐसे सेंटेंसेस बनाने के लिए भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करेंगे। मींस बी का हेल्पिंग वर्ब और वर्ब प्लस आईएनजी। दे आर वर्किंग ऑन अ न्यू प्रोजेक्ट। अब अगर मुझे ऐसा बोलना है वो न्यू प्रोजेक्ट पे काम करते हैं, कर रहे हैं नहीं, अभी कंटिन्यू नहीं है, वर्क करते हैं बोलना है, तो मैं यूज करूंगा सिंपल प्रेजेंट टेंस, दे वर्क ऑन ए न्यू प्रोजेक्ट। अब मुझे ऐसे बताना है वो अभी कर रहे हैं, तो दे आर वर्किंग ऑन ए न्यू प्रोजेक्ट, ओके। उसी तरह से अगर मुझे यह बताना है कि उन्होंने न्यू प्रोजेक्ट पे काम किया, तो मैं कैसे बताऊंगा, दे वर्क्ड ऑन ए न्यू प्रोजेक्ट। इस तरह के सेंटेंस होंगे। नाउ कम टू द लास्ट सेंटेंस, शी इज ट्रैवलिंग टू मुंबई नेक्स्ट वीक। तो हमने डेफिनेशन में जो देखा था, इट इज ऑल्सो यूज टू टॉक अबाउट फ्यूचर अरेंजमेंट्स। फ्यूचर के अरेंजमेंट्स, फ्यूचर प्लान्स के बारे में आप अगर बात कर रहे हैं तो उस वक्त भी यू कैन यूज सिंपल प्रेजेंट टेंस। शी इज ट्रैवलिंग टू मुंबई नेक्स्ट वीक, ये फ्यूचर अरेंजमेंट है ना, नेक्स्ट वीक में वो मुंबई जाने वाली है, बट हम कैसे उसको यूज कर रहे हैं, शी इज ट्रैवलिंग टू मुंबई नेक्स्ट वीक। इस सेंटेंस को हम फ्यूचर टेंस में भी बना सकते हैं, शी विल ट्रैवल टू मुंबई नेक्स्ट वीक, लेकिन उसको सिंपल प्रेजेंट में भी यूज किया जा सकता है, सॉरी प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, शी इज ट्रैवलिंग टू मुंबई नेक्स्ट वीक। तो इन तीन सिचुएशंस में इसको हम यूज कर सकते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस को। पहले टू डिस्क्राइब द एक्शन दैट इज हैपनिंग राइट नाउ एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। दूसरा जो मैंने बताया टेम्पररी अरेंजमेंट्स के लिए, एंड थर्ड फ्यूचर अरेंजमेंट्स के लिए। तो इसके लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, वही चीज अब मैं एक बार आपको बताऊंगा, व्हेन टू यूज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, कब यूज करना है इसको हमको, टू डिस्क्राइब एक्शंस हैपनिंग एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग, आई एम टॉकिंग टू यू राइट नाउ। नेक्स्ट, टू डिस्क्राइब टेम्पररी एक्शंस इन प्रोग्रेस, शी इज स्टडिंग फॉर हर एग्जाम्स दिस वीक। ये स्टडिंग फॉर एग्जाम ये टेम्पररी एक्शन है ना, हमेशा तो स्टडिंग फॉर एग्जाम नहीं करेगी, टेम्पररी एक्शन के लिए भी इज स्टडिंग मीन्स प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज किया गया। एंड लास्ट, टू टॉक अबाउट फ्यूचर अरेंजमेंट्स, दे आर मीटिंग देयर फ्रेंड्स फॉर डिनर टुमारो। कल मिलने वाले हैं, फिर भी हम क्या बोल रहे हैं, वो कल मिल रहे हैं, दे आर मीटिंग देयर फ्रेंड्स फॉर डिनर टुमारो। इसके लिए भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज हो सकता है। एक चीज अब यहां पे हम डिफरेंस बताएंगे आपको, द डिफरेंस बिटवीन सिंपल प्रेजेंट टेंस एंड प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, बिकॉज वी हैव already
seen what is simple present tense in our previous video. If you haven't seen that yet, I'll give the link of that video in the description. You can watch it from there. So to avoid the confusion between simple present tense and present continuous tense, I am telling the difference between them. What is the difference? Present continuous tense is used for actions happening now or in the near future, while the simple present tense is used for routines, habits and general truths. जो रूटीन की बातें हैं, हैबिट्स हैं, जनरल ट्रूथ्स मीन्स यूनिवर्सल ट्रूथ हैं. फॉर एग्जाम्पल द सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट, इस तरह के सेंटेंस के लिए सिंपल प्रेजेंट यूज होता है. लेकिन जो एक्शन अभी हो रही है वो बताने के लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज होगा. रिमेंबर दिस. सो आई होप you are understanding it. You have learnt about the present continuous tense, how to form it and when to use it. Now you can talk or write about actions of continuous tense with confidence. Keep practicing and soon you will master this tense. Thank you for watching. But before ending, there is an exercise for you. What is the exercise? Write one sentence of present continuous tense in comment section and write 5 sentences in your notebook. This is the homework or exercise for you. Thank you for watching and I'll see you next week in the next session with another new tense. Till then, goodbye.